اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 4 حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ 2 موت اور 2 زندگی۔ پہلے موت، پھر اس کے بعد زندگی، پھر موت، پھر اس کے بعد زندگی۔ 4 حالتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی حالتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ۔ اور حالتوں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایک سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، پوچھتا ہے اس سے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان حالتوں کا بیان فرماتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، تم نے اللہ کا کیسے انکار کر دیا۔ کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی 2 موت اور 2 زندگی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کے بعد تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جتنے بھی ہو اس دنیا کے اندر سب کے سب کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو پھر کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کا انکار کیسے کر سکتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں 2 موت اور 2 زندگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیسے کر سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی حالتیں ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ پہلی حالت، پہلی موت، انسان کی 2 موتیں۔ پہلی موت وہ آدم نیست ہے، یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی پہلی موت ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ تو پہلی موت کے بعد پہلی زندگی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں اسے رکھا، اور ماں کے پیٹ میں جب انسان تھا اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اور اس کے بعد یہ پہلی زندگی سے مراد ہے انسان کا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر موت تک، جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی، یہ انسان کی پہلی زندگی ہے۔ اس کے بعد دوسری موت، اس دنیا کے اندر انسان جب تک زندہ رہے گا، زندہ رہنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک موت طاری ہوگی، اور موت آنے کے بعد وہ قبر کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر قبر میں جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کی زندگی ملے گی، اور پھر وہ قبر سے اٹھنے کے بعد وہ آخرت کی زندگی میں جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کے یہ 4 مرحلے بھی ہیں۔ اگر پہلی موت کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد بھی انسانی زندگی کے 4 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہاں بھی وہ زندگی اسے ملتی ہے، اور 9 ماہ تک انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی مقدر میں جتنی عمر لکھ دی ہے
उतनी जिंदगी गुजारने के बाद वो इंसान फिर दोबारा पलट करके कहाँ जाएगा? कब्र के अंदर जाएगा। उसकी मौत आ जाएगी, कब्र के अंदर जाएगा। फिर कब्र के अंदर भी एक जिंदगी है जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है या बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। तो कब्र के अंदर भी एक जिंदगी, और वो जिंदगी उस वक्त तक है जब तक कि क़यामत कायम नहीं हो जाती। तो क़यामत के कायम होने तक वहां रहेगा। पहले कहाँ रहा? माँ के पेट में। कितने दिन तक रहा? 9 महीने तक रहा। उसके बाद दूसरा मरहला उसका आया, ये दुनिया की जिंदगी। इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने जितनी उम्र उसके मुकद्दर में रखी है उतनी जिंदगी गुजारने के बाद जाएगा फिर तीसरे मरहला कब्र के अंदर जाएगा, और कब्र के अंदर वो क़यामत तक रहेगा। और उसके बाद चौथा मरहला, जब सूर फूंक आ जाएगा, सूर फूंकने के बाद सारे लोग अपने अपने कब्र से उठेंगे, और उठने के बाद जब वो उखरवी जिंदगी के अंदर जाएंगे मैदान महशर में जमा होने के बाद, तो वो जिंदगी भी एक बहुत बड़ी जिंदगी है और वो आखिरी मरहला है। इसी तरह हर मरहले में सुख भी है और दुख भी है। पहले मरहला में हम देखते हैं जब इंसान माँ के पेट में होता है तो इंसान को माँ के पेट में भी तकलीफ भी होती है और सुख भी होता है। माँ के पेट में इंसान कभी कभी खेलता भी है, कूदता भी है माँ के पेट के अंदर, और कभी उसे तकलीफ भी होती है बच्चे को। तो सुख भी होता है, दुख भी होता है। फिर उसके बाद दुनियावी जिंदगी के अंदर आता है तो दुनियावी जिंदगी के अंदर हमको आपको इसका अच्छी तरह से एहसास है कि इस दुनिया के अंदर सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं। खुशियां भी हैं, गम भी हैं। कभी हम यहाँ खुशी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और कभी कभार हम उदास और बेचैन हो जाते हैं। तो खुशी, गमी, तकलीफ, सुख, आराम दोनों चीजें यहाँ भी है। उसके बाद फिर जाएगा कहाँ? वो कब्र के अंदर जाएगा तो वहां भी सुख और दुख वो दोनों चीजें हैं। कब्र के अंदर जब इंसान जाता है तो ये कब्र इंसानों को दबाती है। चाहे इंसान नेक हो या बद हो, मोमिन हो या काफिर हो, हर एक को ये कब्र दबाती है। कोई भी कब्र के दबाने से महफूज नहीं रह सकता है। मोमिन को भी दबाती है। जिस तरह जब मौत आती है तो मौत के वक्त की जो सख्ती होती है, जो तकलीफें होती है, तो दोनों को तकलीफ होती है। मोमिन को भी होती है, काफिर को भी तकलीफें होती है। मौत की बहुत बड़ी सख्तियां हैं और इंशाअल्लाह वो सारी बातें मैं आपके सामने बाद में बयान करूंगा। लेकिन मौत के वक्त मोमिन को भी तकलीफ होती है और काफिर को भी होती है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। तो इसी तरह कब्र के अंदर ही मोमिन को दबाती है, फिर बाद में जाकर के उसके लिए राहत है, आराम है, सुकून है, इत्मीनान है। तो वहां भी सुख और वहां भी दुख। अगर मोमिन है तो बाद में चलकर उसे आराम ही आराम है, और अगर एक काफिर है तो फिर क़यामत तक उसके लिए दुख ही दुख है। इसी तरह जब आखिरत की जिंदगी होगी, लोग मैदान महशर में जमा होंगे, उस वक्त भी सुख और दुख दोनों चीज, पहले दुख उसके बाद सुख। लोग सख्त परेशानी के आलम में होंगे। हर इंसान अपनी अपनी नफ्सी में होगा। बड़ा ही हैबतनाक दिन होगा, बड़ा ही होलनाक दिन होगा। लोगों की परेशानी का आलम तो ये होगा कि किसी के जिस्म के अंदर एक कपड़े की धज्जी तक भी नहीं होगी, सबके सब नंगे धड़ंगे होंगे। मर्द भी नंगा, औरतें भी नंगी। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, अल्लाह के नबी ये आप क्या कह रहे हैं कि मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगे होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी। कहा अल्लाह के नबी औरतें तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ देखेंगे। नबी ने फरमाया किसी को इतना होश ही कहाँ रहेगा कि वो दूसरे की तरफ देखेगा। वो दिन तो इतना हैबतनाक, इतना होलनाक दिन होगा कि अगर एक औरत के पेट के अंदर हमल है तो मारे खौफ के, मारे डर के उसका हमल साकित हो जाएगा, उसका हमल भी गिर जाएगा। एक औरत है जिसका दूध पीता हुआ बच्चा है, मारे खौफ और मारे दहशत के अपने बच्चे को दूध पिलाना भी भूल जाएगी। वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये बच्चे मारे दहशत के बूढ़े हो जाएंगे,
सबके बाल सफेद हो जाएंगे। वो दिन ऐसा होगा कि लोग नशे में बदमस्त नजर आएंगे, हालांकि नशे में नहीं होंगे, वो पिए खाए नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नशे में टलमल टलमल करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा ही भयानक दिन होगा। उसके बाद फिर मोमिन के लिए, अगर मोमिन है तो उनके लिए सुकून होगा, आफियत होगी, उनके लिए आशाइश और आराम होगा, इत्मीनान होगा उनके लिए। तो हर मरहले में परेशानियां भी हैं और आराम भी हैं, दोनों चीजें हैं। जिस तरह इंसान माँ के पेट में होता है, माँ का पेट कभी कभार बच्चे को दबाता है, और माँ का पेट जब बच्चे को दबाती है तो फिर वो बच्चे को तकलीफ होती है। कब्र के अंदर इंसान जाता है, कब्र दबाती है, इंसान को तकलीफ होती है। पहला मरहला माँ का पेट बहुत छोटी सी जगह है, बहुत तंग जगह है, बहुत मामूली जगह है, और इस छोटी सी और अंधेरी कोठरी से इंसान निकलता है तो एक बहुत बड़ी दुनिया देख पाता है। इसके बाद कब्र में जाता है तो कब्र भी एक बहुत ही मामूली छोटी सी जगह अंधेरी कोठरी में इंसान चला जाता है, और फिर कब्र से निकलता है तो एक बहुत बड़ी आखिरत की जिंदगी में हो जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम उस अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। वकुंतुम अमवातन, जबकि तुम मुर्दा थे। फाहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो अल्लाह तुम्हें मारेगा, और मारेगा तो मौत के वक्त की जो तकलीफ है मेरे भाइयों और दोस्तों, गोया कि ये आखिरत की तकलीफ का, आखिरत की तकलीफ की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। इंसान को सारी जिंदगी में जो तकलीफें उसने कभी भी नहीं देखा है, वो तकलीफ बस मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है। यहीं से आखिरत का सफर उसके लिए शुरू हो जाता है, और आने वाले जितने भी तकालीफ और मसाइब हैं और जितने भी मुसीबतें परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, उन दुखों का एहसास और अंदाजा यहीं से होने लगता है। मौत के वक्त की तकलीफ, आइए मैं आपके सामने बयान करता हूं। मौत की तकलीफ बयान करने से पहले मैं कुरान करीम की एक आयत आपके सामने बयान कर रहा हूं कि इंसान को मौत के वक्त क्या तमन्ना होगी, उसकी ख्वाहिश क्या होगी। एक काफिर है, उसकी भी मौत के टाइम में एक तमन्ना होगी, एक ख्वाहिश होगी, और मोमिन भी मौत के बाद वो भी कुछ तमन्ना करेगा, और एक शहीद है उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी। तो ये एक काफिर जो है वो तमन्ना करेगा। जैसे ही मौत आएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है, कुरान मजीद के अंदर उसका नक्शा खींचा है। हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी या मौत आ जाती है, फकाला रब्बिरजिऊन, ये एक इंसान की तमन्ना है। मौत के वक्त, मौत के टाइम में इंसान तमन्ना करेगा, आरजू करेगा, ख्वाहिश करेगा। काला रब्बिरजिऊन, ए अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर फिर दोबारा वापस कर दे। अल्लाह छोड़ी हुई दुनिया के अंदर फिर मुझे दोबारा पलटा दे, फिर मुझे वापस जाने दे। अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, लअल्ली आमल सालिहन फीमा तरक्तो, ताकि फिर मैं दोबारा दुनिया के अंदर जाऊं और जाकर के मैं नेक अमल करूं। नेक अमल करने के लिए जो नेक अमल मैंने छोड़ करके आया है, जिसका तूने हमें हुक्म दिया है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदका व खैरात करना, और लोगों के साथ भलाई करना, लोगों के हुकूक की अदायगी करना, ये सारी चीजें जो नेक आमाल हैं, फिर मैं जाऊंगा दोबारा दुनिया के अंदर और ये सारे आमाल करके आऊंगा। अल्लाह एक चांस हमें दे दे। मगर रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई मोहलत नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं। कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। कल्ला इन्हा
कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये तो बस सिर्फ एक कौल है, ये तो सिर्फ उसके मुंह की एक बोल है। ये इंसान जो कह रहा है कि मुझे दोबारा दुनिया के अंदर पलटा दे ताकि मैं नेक अमल करके दोबारा आऊंगा, ये सिर्फ एक कौल और उसके मुंह की बोल है। अगर इसे पलटा भी दिया जाए, हालांकि अल्लाह का कानून जो है पलट करके फिर जान नहीं सकता है। जहां दूसरी मौत आ गई तो फिर पहली जिंदगी में वो जा नहीं सकता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, जा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर भेज दिया जाए तो सिर्फ ये इसके मुंह की बोल है, ये तो कभी वो करेगा ही नहीं, ये तो नेक अमल करेगा ही नहीं, इसको नेक अमल करने की तौफीक ही नहीं होगी। फिर जैसे पहले था उसी तरह हो जाएगा। फिर इस दुनिया की रंगीनियों में आकर के वो रंगीन दुनिया के अंदर उसी तरह उसकी रंगीनियों में ढल मिल जाएगा और उसी तरह उसके सरसब्ज शादाब दुनिया में आइश और इशरत की जिंदगी गुजारने में लग जाएगा। और इसी तरह शैतान के बहकावे में वसवसे में आकर के दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां करता रहेगा। इसी तरह अल्लाह के अहकाम और नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाता रहेगा। ये तो सिर्फ इसके मुंह की बोल है और कुछ नहीं है। लाली आमल सालन फी मा तरक्तु कल्ला इन्ना कलिमतुन हुआ काइलुहा, दोबारा नहीं जाने दिया जाएगा। और इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुनाफिकून के अंदर भी बयान फरमाया है, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने जहां कहा कि ईमान वालों तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, लेकिन जब मौत आ जाती है तो इंसान कहता है अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे ताकि मैं दुनिया के अंदर जाऊं और सदका व खैरात करके आऊं और मैं भी नेक लोगों में शामिल हो जाऊं, मैं भी सालिहीन में शामिल हो जाऊं। तो वहां भी अल्लाह ताला का वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी को भी हरगिज मोहलत नहीं मिल सकती है। चाहे मोमिन तमन्ना करे या काफिर तमन्ना करे, अब दोबारा आने की इजाजत नहीं है। मोमिन भी एक तमन्ना करेगा, जब मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कब्र के अंदर मोमिन जाएगा और उसे जन्नत की खिड़कियां खोल करके जब उसे जन्नत दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा यही वो जगह है जहां तुम्हें रहना है, तो मोमिन इतना खुश होगा कि कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर जाने दे, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से घर वालों से जाकर के मैं ये बताऊं कि मेरा ठिकाना जो है बहुत बेहतर और बहुत अच्छी जगह है, तो ये कहकर के फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्हें भी इजाजत नहीं दी जाएगी। शहीद की भी तमन्ना होगी अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे, जाके फिर अल्लाह की बारगाह में लड़ूं, जाकर के फिर मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं और अल्लाह के रास्ते में फिर दोबारा शहीद हो जाऊं, मगर किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब आइए देखिए, इजाजत तो नहीं मिलेगी। अब मौत के वक्त जो तकलीफें होती है, मौत की शिद्दत, उनकी तकलीफ से कोई भी बच नहीं सकता है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के नबी होने के बावजूद भी नबी की तकलीफ का वो नबी की तकलीफ का जो वो मंजर था कि जिस मंजर को देख कर के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की छोटी बीवी वो बयान करती है कि नबी की तकलीफ को देखने के बाद, मौत के टाइम में जो नबी की तकलीफें हो रही थी वो देखने के बाद अब मैं किसी की भी मौत की तकलीफ को अब मैं बुरा नहीं समझती, अब किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहती। नबी की छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी के पास मौजूद थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक प्याला रखा गया था और अल्लाह के नबी उस पानी के प्याले में अपने हाथ को डुबाते और फिर उठा करके अपने चेहरे को पोंछते, फिर डुबाते, फिर उठा के अपने चेहरे को पोंछते, कभी अपनी चादर को अपने सर में ढांक लेते, फिर हटाते, फिर ओढ़ लेते, फिर हटाते। ये तकलीफ का एहसास था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात, सुबहान अल्लाह ये मौत की सख्तियां ही बड़ी कठिन है। और नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप की तकलीफ को देख करके ये बयान करती हैं, हाय अब्बा जान की तकलीफ
اور اللہ کے نبی جواب دیتے تھے بیٹی غم نہ کرو، آج کے بعد تیرے ابا کی کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، مومن کو بھی تکلیف اور کافر کو بھی، لیکن کافر کی جو تکلیف ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، مومن کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس کی روح بھی نکلے گی تو بڑے ہی بھیانک طریقے سے ان کی روح کو نکالا جائے گا، بڑے ہی دردناک انداز سے کافروں کی روح کو نکالا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر تو ظالموں کو دیکھ لیتا، اگر تو ظالموں کو دیکھ لیتا فی غمرات الموت، موت کے ٹائم میں، موت کے وقت جو تکلیف سے وہ دو چار ہوتا ہے، موت کے وقت جو موت کی شدت ہوتی ہے، جو موت کی جو تکلیفیں ہوتی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر تو دیکھتا ظالموں کو جب موت کے وقت جو ان کی تکلیفیں ہوتی ہے، جو ان کی جو کیفیتیں ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ فرشتے ان کے پاس بیٹھ کر کے ہاتھ کو بڑھا بڑھا کر کے کہتے ہیں، بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، لاؤ نکالو اپنی جان، لاؤ نکالو اپنی جان اور ہمارے حوالے کر دو، والملائکۃ باسطوا ایدیہم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں بڑا ہی دردناک عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کی سزا ملے گی۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کس کو؟ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، کہ لاؤ نکال کر کے دو، نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، آج تمہیں رسوا کن عذاب ملنے والا ہے، آج تمہیں بڑے ہی دردناک سزا ملنے والی ہے اس چیز کے بدلے میں جو تم اللہ کے بارے میں ناحق بیان کیا کرتے تھے، ناحق اللہ کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تم روح گردانی کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نازیات کے اندر بیان فرمایا، اور قسم کھا کر کے اللہ نے بیان فرمایا، وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اللہ نے فرمایا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں ڈوب کر کے اس کی جان کو نکال لیتے ہیں، جسم میں ڈوب کر کے جان کو نکال لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے روح قبض کرنے کا، تو پھر ذرا سا بھی وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، بڑے ہی جلد بازی میں اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ جو ٹائم اللہ نے اسے دیا ہے کہ اتنے ٹائم میں تمہیں روح کو قبض کرنا ہے، اسی ٹائم میں اسے قبض کرنا رہتا ہے، اسی لیے بڑی تیزی کے ساتھ وہ روح کو قبض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے آتے ہیں تو ایک کافر، ایک منافق اور ایک گناہگار کی روح جب دیکھتے ہیں، اس فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتے آ کر کے پہلے ہی آ کر کے اللہ کی ناراضگی کی بشارت سناتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں فرشتے، اے خبیث روح، اے مغضوب روح، چل نکل، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ خبر سن کر کے وہ انسان جب یہ بات سن لیتا ہے کہ فرشتے آتے ہی ڈانٹنے لگتے ہیں، اے خبیث روح، مغضوب روح، چل نکل، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ جب بندہ سن لیتا ہے اس کی چٹی پٹی گم ہو جاتی ہے، اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا، اب کے بعد کے جو مرحلے ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے، وہ بڑے ہی خوفناک ہوں گے، بڑے ہی دردناک مرحلے ہوں گے۔
चुनांचे इसीलिए उसकी रूह जिस्म के अंदर घूमती रहती है, नहीं निकलना चाहती है, नहीं निकलना चाहती है। मारे डर के इंसान की रूह उसके जिस्म के अंदर ही घूमती रहती है, नहीं निकलती है। और अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़ियात गरका, कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म के अंदर डूब करके उसकी रूह को निकाल लेते हैं। फरिश्ते देखते हैं इसकी रूह नहीं निकलती है, उसके जिस्म के अंदर ये फरिश्ते डूब जाते हैं और डूब करके उसकी रूह को खींच करके निकाल लेते हैं। फरिश्ते इंसानों की रूह अलग अलग अंदाज से वो रूह को कब्जे करते हैं, डूब करके निकालते हैं और फिर वो उसके जिस्म के अंदर तैरते हैं। जिस तरह समुंदर के अंदर मोती निकालने वाले, गोताखोर मोती निकालने वाले ये समुंदर में डूब करके मोतियों को निकालते हैं, तैर करके निकालते हैं, इसी तरह फरिश्ते जिस्म के अंदर तैर करके उसकी रूह को निकाल लेते हैं, दौड़ करके निकाल लेते हैं। बड़े ही दर्दनाक तरीके से, जिस तरह नबी ने मिसाल दिया कि जब रूह को निकाला जाता है तो वो जो भीगा हुआ सीख होता है, कांटा होता है, उसमें ऊन अगर रहे तो ऊन को जब सीख से, कांटे से जब ऊन को, भीगे हुए ऊन को जब खींचा जाता है तो पूरा ऊन बाहर नहीं आता है बल्कि उसमें कुछ लग जाता है। इसी तरह इतने दर्दनाक तरीके से उसकी रूह को निकाला जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर बाद में बातें होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की परवाह करने की तौफीक अता फरमाए। और इससे पहले मैं खुतबा ख़त्म करूं, एक ऐलान हमारे सामने है कि आपको पता है, मालूम है कि ईदगाह के सिलसिले में सारी मस्जिदों में चंदे हो रहे हैं कि ईदगाह में देख रहे हैं कि जगह की तंगी है, किल्लत है और लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाती है। आए दिन ईदगाह पूरा फुल होने वाला नज़र आ रहा है, काफ़ी संख्या में भीड़ होने लगी है। जगह की किल्लत है, जगह खरीदना है और उस जगह के लिए बातचीत भी चल रही है। यही वजह है कि जो उसके ज़िम्मेदार हैं वो गांव के हर एक मस्जिदों में वो नाइट का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमारी इस मस्जिद में भी ईदगाह के सिलसिले में नाइट का प्रोग्राम होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जहां तक मुमकिन हो सके बढ़ चढ़ कर के आप हिस्सा लें और इस नेक काम को आप कामयाब बनाएं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ईदगाह एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत जगह है जहाँ पर पूरे गांव के लोग एक ही साथ जमा होते हैं। गांव में कोई भी इंसान नहीं रहता, सब, अगर किसी के अंदर कोई उज्र है वो अलग बात है, वरना पूरे गांव के लोग एक जगह जा कर के इकट्ठा होते हैं साल में 2 मरतबा। आपको पता होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन सी मसलियत और कौन सी हिकमत है कि पूरे गांव के लोगों को एक जगह जमा होने के लिए हुक्म दिया और एक जगह हम जा कर के इकट्ठा होते हैं, वो भी ईद के दिन, जो बड़ा ही मुबारक दिन होता है। तो उस ज़मीन की कितनी बरकत होगी, वो कितनी मुबारक ज़मीन होगी। कितने ऐसे भी इंसान होते हैं जो मुफ्त में जिन्होंने ज़मीन को दान कर दिया है, क्यों ना हम भी उसके हिस्सेदार बन जाएं, हम भी कुछ सदका व खैरात करके उस ज़मीन में जहाँ सारे गांव के लोग नमाज पढ़ते हैं, जो सबों के लिए सदका जारिया बन सकता है, वो बड़ी ही बाबरकत वाली जगह है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसे जहाँ तक मुमकिन हो सके बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले करके अपने लिए सदका जारिया बना लें कि ताकि जब भी नमाज पढ़ी जाए उस मुबारक ज़मीन का हम भी हिस्सादार बने, हमारा भी उसमें ताउन रहे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।